Dear student, I am going to start lesson 9. The name of the lesson is The Sacrifice. Dear student, इसमें एक ड्रामा है जो कि किंग शिबी पर आधारित है। इसमें किंग शिबी है और एक बार इंद्रदेव और अग्निदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तब हम देखेंगे कि किंग शिबी अपनी परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इस ड्रामा में जो कैरेक्टर हैं वो हैं किंग शिबी, द क्वीन, द प्रिंस, Indra, the chief of gods, disguised as eagle, Agni, the god of fire, disguised as dove, courtiers, executioner, officer on duty. Curtain opens. King Shivi is sitting on his throne in a pillared hall facing the courtyard. An open courtyard with gardens and fountains. King Shivi is known for his justice and righteousness. His court is in progress, and there appears a white dove flying straight toward him, chased by an eagle who is trying to kill it. किंग शिबी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं अपने कोर्टयार्ड में, और इस कोर्टयार्ड में गार्डन और फव्वारे भी है। किंग शिबी जो कि न्याय और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, उनकी सभा चल रही होती है। तभी एक वाइट डव उड़कर उनके सामने आती है और वहाँ एक ईगल भी होती है जो उस डव को पकड़कर मारने की कोशिश करती है। किंग सेड, "Oh, what an innocent bird." He opens his robe and the white dove quickly flutters in and nestles there, panting and trembling against his heart. Eagle said, rushing before the throne, burning with anger, "Surrender my prey, king." King said very calmly, "No, the dove is in my shelter and I shall not betray its trust. Pro- Protecting it is my foremost duty." Eagle said, "That dove is my prey, it's my food. How can you take away my food? Is this your justice?" King said, "No, no, I don't want to starve you, but this bird also has the right to live. See, it's so weak and innocent. I will give you food. You can have as much food as you want from my kitchen. My cooks are famous for their cooking." All the courtiers clap in praise of the king, but the face of the eagle does not change. His eye is steadily and piercing as before. किंग ने कहा, "ये कितनी भोली भाली बर्ड है." उसने अपने कपड़े को खोला जिसमें से वाइट डव निकली, जो कि फड़फड़ा रही थी, जो डरी हुई थी, जो कांप रही थी और सांसें ले रही थी। फिर ईगल जो कि बहुत गुस्से में थी, वह राजा के पास आई और बोली कि मुझे मेरा शिकार दे दो। फिर किंग ने कहा बड़े आराम से कि ये मेरी शरण में आई है, मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। फिर ईगल ने कहा, ये मेरा शिकार है, ये मेरा फूड है, तुम इसे कैसे दूर ले जा सकते हो? क्या यही आपका न्याय है? फिर किंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, लेकिन इस बर्ड को भी जिंदा रहने का हक है। देखो ये कितना कमजोर और भोला है, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम जो चाहोगे मेरे किचन से ले सकते हो। मेरे जो कुक्स हैं वे बहुत ही फेमस है। राजा ये कहने पर सभी कोर्टियर राजा के सम्मान करने लगे, लेकिन ईगल की जो आंखें थी वह एक तरफ ही अपने शिकार पर बनी हुई थी जैसी पहले थी। ईगल सेड, "Oh, I don't want any other food. I eat meat, but suppose I ask for your own flesh." The whole court stand up, started, started. Some of them appealing to the eagle. Eagle said slowly and carefully, "I demand your flesh equal to the weight of the dough." King said, "It shall be done. Bring the scales." Eagle said, "Stay, the flesh must be cut from the right side of the body only." King said, smiling, "That is easily granted." Eagle said, "Wickedly, your wife and son must be present at the sacrifice." King said,
Someone says, an officer, bring the queen and my son to the court. The executioner bring the balance. The witness take their places. The court stand up for the queen and the prince as they take their seats. ईगल ने कहा, मुझे दूसरा फूड नहीं चाहिए, मुझे मीट खाना है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारा फ्लैश ले सकता हूँ? जो सारा कोर्ट था वो खड़ा हो गया और ईगल से अपील करने लगा। फिर ईगल ने कहा बड़े धीरे से और सावधानी पूर्वक, मुझे तुम्हारा फ्लैश उतना ही चाहिए जितना वजन में डो का है। फिर किंग ने कहा, ये ठीक है, जाओ तराजू लेकर आओ। ईगल ने कहा, रुको, फ्लैश मुझे सिर्फ बॉडी के राइट साइड से ही चाहिए। फिर किंग ने मुस्कुराकर कहा, ये मुझे मंजूर है। फिर ईगल ने कहा बड़े बुरे तरीके से कि जब तुम ये सेक्रीफाइस कर रहे होगे तब तुम्हारी पत्नी और बेटा भी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर किंग ने कहा अपने कुछ ऑफिसर को कि रानी और मेरे बेटे को लेकर आओ। जो एग्जीक्यूशनर थे वे तराजू लेकर आए। जो लोग कोर्ट में बैठे थे वे खड़े हो गए। रानी और बेटे जब बेटे ने अपनी सीट ली। द क्वीन सेड, ओ किंग, protector or the unprotected, we are with you and may all the gods be with you. The prince said, Father, I salute you, I stand by you. Eagle said, King, place the dough on one side of the balance. Tell your officer to cut your flesh. The officer proceeded to cut the king's flesh. The whole court cries for mercy, but the king is not disturbed. He lets the officer cut the flesh from his leg to the dismay of the whole court. With each addition of the king's flesh, the dough grows heavier. The weight of the two could not be balanced. किंग ने कहा कि राजा, आप तो अरक्षक के भी रक्षक हो। हम सब आपके साथ में हो और भगवान भी आपके साथ में रहेंगे। फिर प्रिंस ने कहा, मैं आपको नमन करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। फिर ईगल ने कहा, राजा, तराजू के एक साइड में डो रखो और आपके ऑफिसर को कहो फ्लैश काटने को। ऑफिसर फ्लैश काटने लगा। किंग के कोर्ट के सभी लोग देखकर रोने लगे ये चीज, लेकिन किंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। उन्होंने ऑफिसर को अपने पैर का फ्लैश काटने को कहा। किंग के फ्लैश को देखकर कोर्ट के सभी लोगों को दुख हुआ और डो इतनी भारी थी वजन में कि दोनों का बैलेंस बराबर भी नहीं हो पा रहा था। किंग सेड, सैडली, ओ गॉड, हाउ ऑफुल, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। ईगल सेड, थंडरिंग स्टॉप, I refuse to take an unwilling sacrifice. Your tears destroy the value of your gift. King said gently, no, my friend, you are mistaken. It is only my flesh side that weeps for the weak and the unprotected. I am your food. Now you can eat me. My fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dough. At this word, the form of the eagle and the doe vanished, and in their place stand Indra, the chief of gods, and Agni, the god of fire. Indra said, bless the doe, king protector of the unprotected. You have the highest place in heaven. You are superior to all the gods. King Shibi, we wanted to taste your godness. We yield to give you a place above us. God shower flowers from heaven. The king, the queen, the prince, and the courtiers bow to God Indra and God Agni. The curtain falls. किंग ने कहा उदास होकर और सोचा कि ओ गॉड, ये कितना बुरा हुआ कि मेरी आंख से आंसू बहे। फिर ईगल ने कहा, रुको, मैं ऐसे बिना इच्छा के सेक्रीफाइस नहीं लूँगी, क्योंकि तुम्हारे जो आंसू हैं वे तुम्हारे सेक्रीफाइस की कीमत को कम कर रहे हैं। फिर किंग ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मेरे मित्र, तुमसे गलती हुई है। मेरे लेफ्ट आई अनप्रोटेक्टेड है और उसमें से 1 वीक से आंसू बह रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारा फूड हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो।
मेरा जो फ्लैश है वह डो के बराबर भी नहीं है, जिससे मेरा फ्लैश सफिशिएंट नहीं है डो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वर्ड सुनते ही ईगल और डो दोनों गायब हो गए और उनकी जगह पर इंद्रदेव और अग्निदेव उपस्थित हुए। इंद्रदेव ने कहा, तुम पर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। किंग, तुम आरक्षित के भी रक्षक हो। तुम्हें स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। तुम सभी भगवानों में से महान होगे। किंग शिवी, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम अपनी जगह भी तुमको दे देंगे। यह देखकर सभी भगवान फूलों फूल बरसाने लगे और किंग, क्वीन, प्रिंस और सभी कोर्टियर भगवान इंद्र और भगवान अग्निदेव को नमन करने लगे और फिर पर्दा गिरता है। थैंक यू।